Now the BJP MPs are leaving one after other. Manoj Tiwari has also stepped out, and we can see him, he is also getting a similar treatment from the AAP Karyakartas. The way the other colleagues of his had to face the ire, a similar kind of situation is happening with him as well. However, BJP MPs are saying that they are not to be held responsible for whatever has happened today. Well, so the buck keeps getting passed on from one political party to the other, and Amit, the thing is, who suffers? It's the people of Delhi who don't have a mayor suffer. If I could just request you to get a reaction as well from Manoj Tiwari. Yes, it is the people. Yes, Chaiti, I'll try to get Manoj Tiwari's reaction on the developments which have just unfolded. बल्कि आपके चैनल पे आ चुका होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है हम सदन में बैठे हुए आप आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी भाषा और अंदर उनके पार्षदों की भाषा में डिफरेंस है। मैंने आतिशी जी से भी बात करी, मैंने सौरभ भारद्वाज जी से भी बात करी। उन लोगों ने कुछ भी हमसे ऐसा बात नहीं कहा कि बैठिए कुछ बात करनी है, और जब वोटिंग शुरू हुआ तो वो बवाल करने लगे। लेकिन आज तो पार्षद बीजेपी के भी दिख रहे थे, वो गालियां दे रहे हैं भाई। अभी भी हमको निकलते समय हंगामा कहाँ शुरू हुआ, ये अगर आप तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मनोज जी, कभी ऐसा हुआ है कि चुनाव हो जाए, सदन गठित हो जाए, नतीजे आ जाए और मेयर का चुनाव 50 दिन हो गए, 2 बैठक हो गई। Chaiti, right there, it's the BJP saying that Aam Aadmi Party is to be blamed, and the Aam Aadmi Party is accusing the BJP of wrongdoings for disrupting the house. Yes, absolutely, and we were, like I was saying earlier, Amit, the ones who are actually suffering in the middle of this political bickering and back and forth are the people of the national capital who have not had a mayor for 8 months now, Amit. Yes, Chaiti. In fact, I'll also try to get Manoj Tiwari on this particular question as to how it is the people of Delhi who continue to wait for their mayor to get elected. This election was supposed to happen in April 2022 itself. That has not happened so far. That took place in December. And even 45 days after the election, the mayor is yet to be elected. So clearly, the BJP MPs are facing the anger of Aam Aadmi Party Karyakartas. On the other side, you have BJP netas constantly blaming Aam Aadmi Party for today's disruption. Chaiti. Yes, absolutely. We'll try to get more reactions, and I'm also going to be asking you to pan your camera, Amit, and show us the kind of ruckus. Let's go full frame on this pictures of ruckus that are coming in, because just look at how they are behaving, whether it is the Aam Aadmi Party, whether it is the BJP. Just look at the kind of behavior that is being displayed out there. Amit, going straight across to you to get us all the chaos. Right, Chaiti, I'm just waiting for Mr. Manoj Tiwari to respond to the questions as to why the people of Delhi have to suffer because of the political bickering and the political fight which is happening between the BJP and the Aam Aadmi Party. Delhi is a city which desperately needs the civic body to come back on track. It's been months that the Babus have been running the show in the MCD. Manoj Tiwari is right now accusing the Aam Aadmi Party of whatever happened inside the house. He's saying that it is not, the Aam Aadmi Party does not want the house to run. Manoj ji, ये सवाल है कि दिल्ली वालों को इतने महीनों बाद भी अभी तक अपना मेयर नहीं मिल पाया। ये बहुत ही दुखद है। मुझे इतना दुख हो रहा है। हम 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और किसी तरह सुरक्षा व्यवस्था में शपथ तो हो गया, लेकिन जैसे ही चुनाव होना शुरू हुआ, वोटिंग होनी, इन लोगों ने बवाल कर दिया। सारा तस्वीर आपके सामने है। तो समस्या है कि जैसे हम सौरभ भारद्वाज जी से मिले, हम वो आतिशी जी से मिले, तो भी हमने पूछा ऑल इज वेल, उन्होंने कहा भी यस ऑल इज वेल, लेकिन जब अंदर जा रहे हैं तो वो झगड़ा करने लगे। कहाँ शुरू हुआ एल्डरमैन की वोटिंग को लेके, कहाँ ये ट्रिगर कहाँ होता है एग्जैक्टली वो हमको नहीं पता चल रहा है, बट उनका कोई आदमी हमसे बात तो करे। इस हंगामे में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उनका रीजन क्या है, ये हमको कोई नहीं बात कर रहा है।
अगर ये भी बात होती एक सवाल ये भी है, एक ये भी सवाल है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका है, हाउस आप रन कर रहे हैं, सिक्योरिटी आप बुला रहे हैं, फिर भी हाउस नहीं हो पा रहा है, मेयर का इलेक्शन नहीं हो पा तो देखो जो अंदर पार्षद हैं अगर वही बवाल करने लगे, पिछली बार क्या हुआ, बहुत सारे समर्थक अंदर गए, इस बार उनको रोका गया। अब अभी भी जब हम आए हैं तो आपके पास देखिएगा जितने वीडियो हैं उन लोगों ने कितनी गालियां दी हैं हमें। अरे भाई मुझे क्यों गाली दे रहे हो? मनोज तिवारी को यहाँ पे घेर के मारने की तैयारी कर रहे हो। ये आम आदमी पार्टी आपने देखा ना? नहीं, अब सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे आप सांसदों को इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, ये कहीं से सभ्य व्यवहार कह सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवहार है? आपकी पार्टी का जो भी इशू होगा वो बताएंगे, और हाउस एडजर्न हमने नहीं किया। हाउस एडजर्न दोनों तरफ के पार्षद एकदम से, यही सवाल है कि भिड़ंत क्यों चल रही है? 2 बार चुनाव कराने की प्रक्रिया की कोशिश, लेकिन भिड़ंत रुक ही नहीं रही है। अगर मैं यही पूछना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं कि आई मेट सौरभ भारद्वाज जी, आई मेट आतिशी जी, उन लोगों ने हमसे कुछ इशू कहा ही नहीं। बस हम अंदर जब आए तो देखा कि दोनों तरफ से भिड़ गए फिर से। ये राजनीतिक आरोप लग रहा है कि जैसे ही सांसद आए उसमें भी आपके पार्टी के 2 सांसदों का नाम लिया जा रहा है, उसके बाद हाउस डिस्टर्ब हो गया, हंगामा शुरू हो गया। इस पे क्या नहीं, सांसद हमारा वीडियो में देख सकते हैं, हम लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं। अब वो ये बहाना लेना चाहते हैं तो हम तो सांसद कोई 2 बजे थोड़ी आए हैं, हम 10 बजे से आए हुए हैं, और हम दिल्ली की जनता के हित में तुरंत चुनाव कराना चाहते हैं, मेयर देना चाहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी या तो अपना मेयर बनाना नहीं चाहती है, और या तो वो उसको लग गया है कि उसके पार्षद उसका साथ नहीं देंगे।